اب آپ دیکھیں، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی۔ آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا۔ جو کوئی جلدی والی دنیا چاہے تو ہم اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں، جس قدر چاہیں، جلد عطا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، اور اس میں وہ مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہے اس کے لیے پوری صحیح کرے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی صحیح یعنی کوشش قابل قدر ہے۔ ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے رد کی ہوئی نہیں ہے۔ غور سے سن لے، سب کو ملتا ہے، لیکن اپنی ہماری مرضی ہے کتنا حصہ لیتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرائیں، ورنہ پھر آپ مذمت کیے ہوئے اور بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ یہ جو اب آ رہا ہے نا رکوع، یہ رکوع ایز اٹ از اسی طرح تورات میں بھی موجود ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات میں بھی رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ رکوع جو ہے یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی رکھ دیا۔ تو دیکھیں اس رکوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو تمام آیات کو دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا زبردست اس رکوع میں بتا دیا۔ اور سب سے پہلا کیا تھا اس رکوع کا کہ کسی کو معبود نہیں ٹھہرانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ، ورنہ آپ مذمت کیے ہوئے اور بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا، انہیں مت جھڑکنا، ان سے نرم لہجے میں ادب احترام سے بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ تمام بچوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرائض میں ڈال دیا، والدین چاہے جیسے بھی ہوں ان کو اف کہنے کے تو دور کی بات۔ آپ دیکھیں کہ آج کل جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہم اف اف تو نہیں کرتے، لیکن ہم تیزی سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ آپ ذرا اف اف کریں، آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اگر کینڈل رکھی ہو بجھ جاتی ہے نا، آپ کا سانس ہے نا، اف کون سا کلمہ ہے؟ ایک سانس نکال رہے ہیں نا آپ، لیکن وہ اتنا خوفناک سانس ہے کہ آپ کے والدین اندر تک اس سانس کی وجہ سے جل کر رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں باہر والے جتنے مرضی آپ کو کچھ کہتے رہے، آپ کے شوہر آپ کو اٹھا اٹھا کے پٹکے، جتنی مرضی دنیا جہان کی باتیں کرے، آپ کا ایک بچہ آپ کو کہہ جائے اف میری ماں تمہاری وجہ سے بڑا تنگ ہوں، اللہ معاف کر دے ہم سب کو۔ آپ دیکھ لیں ایک اف کر دے بچہ، ماں اندر تک لرز کر رہ جاتی ہے۔ اور آج کل چھوٹا چھوٹا بچہ اٹھ کر کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا، آپ نے مجھے کیوں دنیا میں لے کر آئے، جب ہمیں جی، اور آپ جب ہمیں ہمارا پورا نہیں کر سکتی تھی، تو جب آپ لوگ ہمیں دے نہیں سکتے تھے تو ہمیں کیوں لے کر آئے اس دنیا میں۔ یعنی بچوں کو اتنی ہم نے لگژریز کا عادی بنا دیا ہوا ہے ہماری۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہ جو پچھلی جنریشن آئی ہے، آخری جنریشن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ کبھی والدین کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ 18 20 سال کے ہو جاتے تھے، والدہ کو اتنا اختیار حاصل تھا کہ وہ اٹھ کر منہ پر اتنی زور سے تھپڑ لگا دیتی تھی کہ 14 طبق روشن ہو جاتے تھے۔ دور سے مائیں جو تھی وہ اپنے بیٹوں کو جوتیاں مارتی ہوتی تھی کہ تم گئے فلان جگہ گئے تو گئے کیسے۔ یہ وہ آخری نسل تھی۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ جوتی تو دور کی بات، آپ اپنے بچے کے ساتھ ذرا اونچی آواز میں بات تو کریں، جتنے آپ لاؤڈ ہوں گے اس سے کئی زیادہ لاؤڈ ہو کر وہ آپ کو بتائے گا کہ میں ہی آپ کی اولاد ہوں، آپ کی ہی اولاد ہوں۔ تو آج دیکھیں کتنا زبردست تمام بچے اور ہم سب بھی، ہمارے والدین بھی اگر حیات ہے تو ہم سب کے لیے بھی ایک اف کرنا اتنا بڑا کلمہ ہے کہ والدین کو اندر تک جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور انہیں مت جھڑک، ان سے نرم لہجے میں ادب احترام سے بات کر، ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو پہلو جھکائے رکھ اور کہہ
اے میرے رب، کیا کہے، پڑھ لیتے ہیں آیت، ربرحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو غور سے سن لیں، کل جو وہ راجستھان کی عورت کہہ رہی تھی میں نے بچی کو پھینک دیا، اگر ہماری مائیں ہمیں نہ اٹھاتی، ہمیں دودھ نہ پلاتی، ہمیں صاف نہ کرتی، دیکھیں جس گندگی میں ہم اپنی نیپیوں اور اپنے پیمپرز کے اندر ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ رات میں جس وقت ان ماؤں کے پاس یہ پیمپرز نہیں تھے، یہ نیپیاں پہناتی تھی، ساری ساری رات یہ مائیں جاگتی ہوتی تھی، کیونکہ بچہ ہر گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد بچہ گیلا ہو جاتا تھا، ادھر بچہ گیلا ہوتا تھا، ادھر وہ چیخیں مارتا تھا، ساتھ ہی ماں بھی اٹھ جاتی تھی، اور سارا سارا دن بھی ماں کام کرتی تھی اور اسی طرح اپنے بچے کی خدمت کرتی تھی۔ اگر یہ مائیں نہ اٹھتی اور نہ اپنے بچوں کو سہولت دیتی تو آپ دیکھیں کیا یہ بچے آج اتنے بڑے ہوتے، آج یہ زبانیں ان کی اتنی ٹر ٹر کر کے چل رہی، یہ چل رہی ہوتی؟ یہ کس کی وجہ سے چل رہی ہیں یہ زبانیں؟ یہ انہی ماؤں نے آپ کو اپنا خون پلا پلا کر بڑا کیا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ اے میرے والدین تم نے ہمارے لیے کیا، اور اس طرح ہی ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، اگر تم صالح ہو گئے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ تو آج سے پہلے اگر غلط کام ہو گیا تو معافی مانگ لے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یا اللہ جی میری پکڑ نہ کرنا اور میری توبہ قبول فرما دیں، اور قرابت داروں کو ان کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑا۔ یہ تو رات میں بھی لکھا ہوا تھا، بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ آپ کو پیسہ اس لیے تو نہیں دیا کہ اس کو اڑایا جائے، آپ کو تو پیسہ اپنے استعمال اور لوگوں کے استعمال کے لیے دیا تھا، لیکن آج آپ دیکھ لیں ہمارا تو اپنا پورا نہیں پڑتا، کسی اور کو ہم نے کیا دینا ہے۔ اور اگر تو اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کے لیے جس کی تو امید رکھتا ہے ان کے عزیزوں کا رب سے اعراض ہی کرے تو تو ان سے ایسی بات کہہ جس میں آسانی ہو، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ کہ پیسے ہوں اور ہمیں دینے پر نہ آتے ہوں، اور نہ ہی اسے پوری طرح کھول دے کہ اتنا ہی نہ دے دے کہ پھر خود مانگتا پھرے، پھر ملامت زدہ اور تھکا ہارا ہو کر بیٹھ جائے۔ بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے، تنگ بھی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ جی ہم سب کا بھی رزق کشادہ کر دیں، اور یا اللہ جی ہم سب کو اپنی جناب سے عطا فرما دیں، اور یا اللہ جی ہمیں کسی کی طرف دیکھنے والا نہ بنائیں، اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں جب یہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے میں ہلکا پھلکا سا ریسرچ ورک ضرور کرتی ہوں، چاہے میرے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں 1-2 مرتبہ میں نے کچھ علماء کے منہ سے سنا تھا، لیکن کل میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو بنی اسرائیل کی ہسٹری تھوڑی سی نکالی، اور تھوڑا سا میں یہ زنا کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ ہمارا ملک جو ہے یہ تو اسلامک ملک ہے، تو یہ جب اسلام کے نام پر لیا گیا، تو جب قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تو پھر ہمارے ملک میں اس کے لیے کوئی سزا تو موجود ہونی چاہیے تھی نا، یہ ابورشن کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ابورشن لیگل نہیں ہے، آپ لیگلی ابورشن نہیں کروا سکتے، لیکن اگر آپ ہمارے ملک میں آخری جو ریشو آیا ہے نا تمام ہاسپٹلز کا، سب سے آخری جو ریشو آیا تھا وہ 2001 میں آیا تھا، آپ بھی کیا چل رہا ہے 2023، 22 سال ہو گئے ہیں، حکومت نے اتنا زبردست کام کیا ہے، نہ اس کی فگر نکلوائیں گے، نہ فگر ہوگی، نہ لکھا ہوا سامنے ہوگا۔ میں کل یہی سارا پڑھ رہی تھی کہ اس کو انلیگل ہوتے ہوئے آج ہمارے ہاں اتنا ابورشن کیا جاتا ہے، انڈیا میں اتنا ابورشن نہیں ہو رہا، انڈیا میں اتنا ابورشن نہیں ہو رہا، اور انڈیا کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے، اور دنیا میں بھی باقی تمام جگہوں پر بھی، اور انڈیا کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ابورشن وہاں کروائے جاتے ہیں۔ تو میں
2001 का कल वो देख रही थी कि इंडिया में इतना अबॉर्शन नहीं हो रहा जितना अबॉर्शन हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होता है। इतना अबॉर्शन हो रहा है और सब इलीगल हो रहा है। मुख्तलिफ तरह की, बाज जगह पर उन्होंने बताया कि बहुत सारे इलाकों में दाइयां ये काम कर देती हैं, बहुत सारे इलाकों में LHVs भी कर देती हैं, बहुत सारी जगहों पर खाली दवाइयां देकर खत्म कर दिया जाता है। अब मैं चेक कर रही थी कि कुरान में तो इसकी सजा है, हदीस में भी इसकी सजा है, तो मैं ये चेक कर रही थी कि हमारे मुल्क के क्या लॉ में इसकी सजा है, तो जी हाँ है। आप हैरान रह जाएंगे, सजा मैंने सुनी, मैं परेशान हो गई, इंप्लीमेंट नहीं है। आपको पता है, वो बच्चा जिसके ऑर्गन ना बने हो, जिसका जिस्म ना बना हो, और ये बच्चा कितने अरसे का होता है? 2 माह का, 2 माह का, जी वही 2 माह हो जाते हैं ना। 2 माह का बच्चा जिसमें माँ को पता ही नहीं होता कि मेरे पेट में क्या पल रहा है, 3 इंच का एक छोटा सा टुकड़ा, वो बच्चा जिसके ऑर्गन्स अभी बने नहीं हैं और वो माँ के रहम में मौजूद है, उस बच्चे को अगर अबॉर्ट किया जाता है तो 3 महीना कैद है। हमारे लॉ में लिखा हुआ है 3 महीने की कैद है। और कैद किसको होनी है? जो अबॉर्शन करेगा, वो डॉक्टर, वो दाई, वो LHV। माँ को तो नहीं है ना, माँ ने तो करवाया, उसने तो पैसे दिए, करने वाले ने क्यों किया? तो हमारे यहाँ लॉ मौजूद है, ऑर्गन नहीं बने हुए 2 माह का बच्चा, वो 40 दिन का बच्चा, हम कितने आराम से कहते हैं हाँ अभी 40 दिन का तो था, बना तो नहीं था। आपको पता है 10वें दिन तो बच्चे की धड़कन शुरू हो जाती है, तो क्यों नहीं बना था वो? 10वें दिन तो वो धड़कना शुरू हो जाता है, माओ को तो पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि हमारे पेट में कुछ हो रहा है। तो आप ये देखें कि जिसके अभी ऑर्गन नहीं बने उसके लिए 3 माह की सजा है, और वो बच्चा जिसके ऑर्गन्स बन जाते हैं, वो बच्चा जिसके अंदर सब कुछ हो जाता है, यानी 4 माह का बच्चा, अगर उसको अबॉर्ट करता है कोई, तो माँ उस बच्चे की दियत देगी। 5 ऊंटों की सजा है माँ को। जिस माँ ने करवाया, माँ उस बच्चे की दियत देगी, और जो वो है डॉक्टर, उसको 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा उसको लगेगी। तो देखें, अगर बाप की रजामंदी शामिल होगी तो फिर बाप ही देगा ना। लेकिन हमारे यहाँ जो इलीगल होते हैं उसमें कौन सा बाप होता है, कौन सी रजामंदी? आपको पता है, इसी रिसर्च वर्क में मैं कराची के एक गटर के बारे में पढ़ रही थी कि उसमें वो लोगों ने शिकायत की कि गटर बड़े अरसे से बंद है। चक्कर क्या है, 3 इकट्ठे 9 मौलूद बच्चे उस गटर के अंदर फंसे हुए थे, जिनको जो है अबॉर्ट करके, बड़े बच्चे 6 महीने का, 8 महीने का, अबॉर्शन नहीं होता 6-8 महीने में, माँ मर जाती है, माँ मर जाती है। लेकिन आप देखें बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स आ गई कि आप यूट्रस जो है उसको खोलें और आप जो है अबॉर्ट कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम आ गए। 3 बच्चे, मैं कराची के उस जगह का पढ़ी थी कि 3 बच्चे उसमें से वो फंस गए, अल्लाह ताला ने गटर में आगे नहीं जाने दिए, और इकट्ठे 3। और आप देखें कि एक दिन में किसी ने वो इकट्ठे 3 अबॉर्ट किए ही है ना। और वो उनके ऊपर जब हुआ रिसर्च वर्क हुआ तो वो बच्चे वो थे, क्योंकि जो अबॉर्शन वाले बच्चे होते हैं वो मुकम्मल नहीं होते, उनको हाथ कटते हैं, पांव कटते हैं, बिल्कुल कीमे बनते हैं। और इन बच्चों को तो प्रॉपर डिलीवर किया गया था ना। तो ये डिलीवरी जब हुई इन बच्चों की, तो ये बच्चे 3 अदद बच्चे उस गटर का, अगर आप लोग कहें वो रिसर्च वर्क चाहिए हो तो यकीन जाने गूगल पर जाएं और कराची के सारा सर्च कर ले, सब लॉ आपको मिल जाएगा। जी वो दफनाते, बिल्कुल गटर में ना डालते। फिर आप देखें, ये तो हम सबकी आंखों देखा हाल है, कुछ अर्सा पहले की बात है, वो कुत्ता जो मुंह में जो गंद से एक बच्चे को लेकर जा रहा था, और उसकी जो आल थी वो भी साथ में लटक रही थी, और एक कुत्ते ने उस बच्चे को बचाया कि वो बच्चे की आखिरी सांसें थी, कोई कूड़े पर डाल गया था। कूड़े पर डालना तो एक आम सी नॉर्मल सी बात है, डस्टबिन पे डाल दो, कहीं वहां फेंक दो, कहीं रास्तों में डाल दो, तो ये कहाँ हो रहा है? झूले में डाल दो, जी बिल्कुल, वो उनके पास बड़े हो जाते हैं। तो आप ये देखें हमें क्या ऑर्डर मिला था। और हमारे पाकिस्तान में, दरअसल मेरे घर के बिल्कुल करीब ही एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल था, तो वो मुझे कुछ दिनों पहले पता चला। मैंने कहा यहाँ बड़ी औरतें आती होती थी, तो
चक्कर क्या है? तो कुछ अर्सा पहले ही मुझे पता चला कि इनका जो मालिक है तो वो आजकल जेल में होता है। मैंने कहा क्यों? तो वो उन्होंने कहा कि यहाँ पर दिन रात अबॉर्शन होते थे, तो इस सिलसिले में। तो उसी सिलसिले में मुझे जरा ये हुआ कि मैं देखूं हमारे लॉ में कुछ है, तो अगर कोई पकड़ा जाए तो फिर वो पकड़ा गया, और जिसने नहीं पकड़े जाना वो बड़ी बड़ी कीमतें देकर वो इलीगली ये सारे काम करता रहे, हमारे यहाँ कोई मना नहीं किया जाता। तो आज देखें, और फिर एक और चीज भी ज़हन में रख लें, औरत को ये बताना ये टोटका कर लो, ये खा लो तो ये हो जाएगा, अभी तो 10 दिन में है जी, भारी बाल्टियां उठा लो, पराते उठा लो, ये कर लो, खुद ब खुद ही बच्चा दूर हो जाएगा। आप अगर ये भी बताती हैं तो ये भी कत्ल है, क्योंकि कत्ल के बारे में बता दिया गया कि अगर कोई शख्स आंख के इशारे से भी बताता है, कोई पूछता है कि फलां शख्स कहाँ है, और आंख के इशारे से वो बताता है कि वो वहां है, और उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो उस कत्ल में आपका भी हिस्सा होता है। तो इसी तरह वो तमाम बच्चे, जो बहुत सारी औरतें फिर वो बड़ी बन जाती हैं, वो फिर अपनी तरफ से टोटके करना शुरू हो जाती हैं, ये ले लो, ऐसी गोली ले लो, ये दवाई खा लो, वो कर लो। तो अगर हमने कभी ऐसा भी किया है तो अल्लाह ताला से माफी मांगे, तौबा करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और गुनाह का काम है। और मैंने आपको क्या कहा, तो रात में भी लिखा हुआ है, और हमारे पास भी कुरान पाक में एज इट इज हमें भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दे दिया है। और तुम जिना के करीब मत जाओ। ये गटरों से जो सब कुछ निकलता है कहां से आता है? यकीनन वो बेहयाई और बुरी राह है। और तुम उस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया सिवाय हक के, और जो जुल्म से कत्ल किया जाए तो हमने उसके वारिसों को गलबा दे दिया। चुनाचे वो कत्ल कसास में ज्यादती ना करे, बेशक वो मदद किया हुआ है। तुम यतीम के माल के करीब ना जाओ सिवाय इसके जो आसान तरीका हो, हत्ता कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। तुम अहद पूरा करो, बेशक अहद की बाबत सवाल किया जाएगा। जब तुम माफ कर दो तो तुम माफ पूरा करो, सीधी तराजू से तोलो, ये बेहतरीन है और अंजाम कार के लिहाज से बहुत अच्छा है। जिसका आपको इल्म नहीं और आप उसके पीछे ना लगे, जिन बातों का नहीं पता उनके पीछे लगने की जरूरत ही नहीं है। बेशक कान, आंख और दिल, इनमें से हर एक की बाबत सवाल किया जाएगा। और जमीन पर अकड़ कर मत चल, बिला शुबा तू ना तो कभी जमीन फाड़ सकता है, ना कभी लंबाई में पहाड़ों तक पहुंच सकता है। ऐसे अकड़ अकड़ कर चलना अल्लाह सुब्हाना व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सारे मज़कूरा काम और उनकी बुराई आपके रब के नजदीक नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो आपके रब ने आपकी तरफ वही की, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना ठहराओ, वरना जहन्नुम में मलामत ज़दा और धुतकारे हुए डाले जाओगे। दोबारा बताया जा रहा है। तो ये थी वो बातें जो तौरात में भी थी और अब कुरान पाक में भी आ गई। क्या फिर तुम्हारे रब ने तुम्हारे बेटों तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया और अपने लिए फरिश्तों में से बेटियां बना ली? बिलाशुबा तुमने बहुत बड़ी नाजेबा और खतरनाक बात कहते हो। हमने इस कुरान में फेर फेर कर हकायक को बयान किया है ताकि वो नसीहत पकड़े, लेकिन ये चीज इनको नफरत में ही ज्यादा करती है। कह दीजिए अगर इसके साथ वो माबूद होते जैसा कि वो मुशरिक कहते हैं, तो वो साहिब अर्श अल्लाह तक पहुंचने के लिए जरूर कोई राह तलाश करते। वो पाक है, वो मुशरिक जो कुछ कहते हैं इससे कई ज्यादा आला और बुलंद तर है। सातों आसमान और जमीन और जो मखलूक इनमें है इस अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हमद के साथ तस्बीह ना करती हो। आप लोग भी करते जाएं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो नहायत हौसले वाला, बहुत बख्शने वाला है। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक मख्फी पर्दा डाल देते हैं, और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं इससे कि वो इसको समझें, और इनके कानों में गरानी डाल देते हैं। और जब आप कुरान में अपने अकेले रब का जिक्र करते हैं तो वो नफरत से अपनी पीठों के बल फिर जाते हैं। हम खूब जानते हैं जिस गर्ज से कि वो इस कुरान को सुनते हैं, जब वो आपकी तरफ कान लगाते हैं, जब वो खुफिया मशवरे करते हैं, तब भी जबकि जालिम ये कहते हैं कि तुम जिसकी इत्तबा करते हो वो तो
जादू मारा शख्स है। देखिए उन्होंने अपने लिए किस तरह मिसालें बयान की, वो गुमराह हो गए, लिहाजा वो रास्ता नहीं पा सकते। तो एक चीज ज़हन में रख लीजिए, यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला आज हर तरह से हमें जो है वो बताते चले जा रहे हैं कि एक चीज ज़हन में रखें। हम अक्सर ये कहते हैं, और स्पेशली मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से जरूर कहूंगी, हम अक्सर ये कहते हैं, बीच में हमारे बच्चों का शोर शुरू हो जाता है, बीच में घरानी आ जाती है, बाज़ औक़ात हमें क्लास में नींद आने लग जाती है। मैं क्यों आपको बार बार कहती हूँ कि जहां नींद आए वहां फौरन उठ जाया करें, मुंह धोया करें, हल्का सा गीला रुमाल पास रख लिया करें। क्योंकि आप देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपको नींद आने लगती है, आपका दिमाग सोने लग जाता है, आप एकदम से जब होश में आती हैं आप कहती हैं ओहो अभी तो बनी इसराइल की बात हो रही थी, और अभी जो है ये तौरात की बात कहां से आ गई, ये बीच का हिस्सा कहां गया। तो एक चीज ज़हन में रखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम बड़ा ही जबरदस्त कलाम है। ये ऐसा कलाम है कि हर किसी के लिए इसको सुनना, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर किसी के लिए सुनना भी नहीं रखा हुआ। तो अगर हम बीच में सो जाते हैं वो पूरा हिस्सा हमसे मख्फी हो जाता है। ये ना समझा करें कि मैं कुरान की महफिल में आ गई और अगर मैं सो गई तो मैं फूलों की सेज पर। कौन से फूलों की सेज? ड्रामे और फिल्मों में तो हम नहीं सोते। इंटरेस्ट होता है ना कि अब सास कब जला देगी और अब जो बहू है वो कब उठाकर बाहर निकाल देगी, इंटरेस्ट है ना हमारा। कुरान में इंटरेस्ट नहीं है, फिर हम कहते हैं हमें नींद आ गई, फूलों का सेज बन गया, और फिर अपने लिए लॉजिक बना लेते हैं, सेज रख देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, सकीनत आ गई। सकीनत का मतलब तो ये है कि दिल के अंदर ठंड पड़ जाती है। मैंने तो बहुत ही आम अल्फाज में बता दिया, ठंडक आ जाती है, इधर सुकून हो जाता है एक एक आयत को पढ़कर, वो होती है सकीनत। दिमाग पुरसकून, दिल पुरसकून, जिस्म पुरसकून। तो आप ये देखें ये कैसी सकीनत है कि जिसने आधा आपसे पारा या आपसे 2 रकू या 4 रकू या 6 रकू आपसे मख्फी कर दिए। मैंने आज से पहले ये बात की है, ये 15वें पारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रही। अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात कानों में गरानी डाल देते हैं। आप देखें आपके घर में बाज़ औक़ात आप तफसीर चला रहे होते हैं, आप देखिए एकदम से बच्चे जन करते हुए आते हैं और आकर वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं, वो पूरा एक पोर्शन आपसे रह जाता है। आप कहती हैं हाय मैं तो तफसीर सुन रही थी, और क्या पता उसी के अंदर ही हमारे लिए भलाई हो, उसी के अंदर हमारे लिए खैर हो, उसी के अंदर हमारे लिए बख्शिश हो। तो इसलिए कुरान पाक का मामला सबसे मुख्तलिफ होना चाहिए। और आज की इस आयत को अंडरलाइन करके अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफी मांगनी है और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते कि या अल्लाह जी जब कुरान पाक के लिए लाकर हमें बिठा दिया और हमें सुनने वाला बना दिया, तो या अल्लाह जी इसकी एक एक आयत को सुनने और मुस्तफीद होने में हम सब की मदद फरमा दे। हम सबको या अल्लाह जी इतनी इस्तात दे दें कि इसकी एक एक आयत को हम सुने और अपने दिल में उतारें। और आप देखें तकवा का यही तो तकाजा है। आजकल हम सब बार बार कह रहे हैं नींद पूरी नहीं हो रही, क्लास में आप पर सकीनत भी आ रही है, तो फिर क्या होता है, फिर हमें नींदें आती हैं, क्योंकि हमने तो अपने जिस्मों को इस काबिल बनाया हुआ है ना कि जहां नींद आए वहां सो जाओ। अपने नफ्सों को हमने मोटा किया हुआ है, हमने तो इस नफ्स को ट्रेनिंग दी ही नहीं है। तो यही वजह है कि फिर आप देखें ना नींदों पर इख्तियार रहता है ना सुस्ती पर इख्तियार रहता है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह जी हमें किसी बुरे हालात में ना लेकर जाना, और या अल्लाह जी अपने एक एक लफ्ज को, एक एक कलमे को सुनने की हम सबको तौफीक अता फरमा देना। और या अल्लाह जी कुरान पाक के हर हिस्से को हम सुने, हम अपने दिलों में उतारे और इसको आगे पहुंचाने वालों में भी हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की आप सूरत देख रहे हैं, कितना ज्यादा जरूरी था इस सूरत पर बात करना कि अब हम रुबा तक पहुंचे। अल्लाह ताला ने जितना करवा दिया ना आपको कोई जल्दी है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, आपका मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अगर हाँ हमें भी जल्दी नहीं है, शाबाश। वैसे मेरे आगे जो भी स्टूडेंट होता है पता नहीं गरीब बेचारा मेरी वजह से चुप कर जाता है, क्योंकि पिछले साल हम दूसरी जगह गए थे तो उनका भी यही था, उन बेचारों को तो हर साल 20वें रोजे 21वें रोजे दौरा कुरान कंप्लीट हो जाता था, हम ले गए जाके 29वें रोजे।
تو وہ بھی آخر تک وہ ایک ہی بات کرتے رہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم نے آرام سے سننا ہے, سکون سے سننا ہے, پھر ہم سال بعد سنیں گے, کتنے عرصے کے بعد سنیں گے. تو میں ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جی ہمارے اندر ہر معاملے میں جلدی رکھی ہے, قرآن کے معاملے میں نہ رکھنا میرے اللہ جی. پھر نہیں پتا ہم اگلے سال ہم بیٹھ سکیں, ہم نہ بیٹھ سکیں, ہم نہیں جانتے کہ کون سی ایسی آیت ہو جو ہماری بخشش کا سبب بن جائے. تو آپ سب سے زیادہ تو مجھے زور دینا پڑتا ہے, میرے گلے کے اوپر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ نے تو سننا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کروا لینے. بس ہم یہ کریں کہ صرف اتنا صبر لے کر آئیں. جی آمین, آپ سب کے ساتھ ہم صرف اتنا صبر لے کر آئیں کہ ہم سب سے زیادہ, آپ کو پتا ہے میں اپنے گھر میں سنتی ہوں, ہے اتنواں پارا ہو گیا, اتنواں روزہ ہو گیا, ابھی اتنواں پارا ہے, ابھی آگے نہیں بڑھی ہو. مطلب وہ تراویح کے قرآن پاک کو اس پر قیاس کرتے ہیں جو گھر والے ہیں, وہ جو تیزی سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا وہ اس پر قیاس کرتے ہیں. تو میں نے کل پرسوں پھر بار بار یہ بات پہلے رمضان سے سنتے چلے آ رہے, میں نے پرسوں پھر اپنے گھر کے ایک بندے کو پکڑ لیا, میں نے کہا ذرا ادھر آئے نا, ذرا مجھے بتائیں سورۃ بقرہ کے احکامات بتائیں اور اس کے بتائیں اور اس کے بتائیں. کہتے ہیں نہیں بہت اچھی بات ہے, تم آرام سے جا رہی ہو, بہت اچھا, تم جاؤ اور پڑھو. تو آپ دیکھیں ہم تراویح میں بھی کیا کر رہے ہیں, تو علماء صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا تو سمجھ لیتے, تھوڑا سا تو کچھ اپنے لیے ہم بندوبست کر لیتے. تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا وقت لگا لیں گے, لیکن اچھا اور بہترین قرآن پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا شکر. آگے دیکھتے ہیں, دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح مثالیں بیان کی. وہ گمراہ ہو گئے لہٰذا وہ راستہ نہیں پاتے. اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے, کیا ہم دوبارہ اکثر نو پیدا کیے جانے والے یا اٹھانے والے ہیں. میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے نہیں بتایا تھا کہ میں عربک لینگویج پڑھا رہی ہوں, اور مجھے کلیئرلی کہا کہ اس سے تم نے امت کا کیا کر لیا, کیا فائدہ دے دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ ہم نے تو ہڈیاں ہو جانا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا جس نے کہا امت کا کیا فائدہ کر لیا. اتنے بڑے پڑھے لکھے آفیسر جن کی یہ بات تھی, انہوں نے کہا آپ لوگوں کو آخرت آخرت, آپ دین والے جو ہیں ہمیں آپ سے سب سے بڑا گلہ ہے, آخرت 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 آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے, تو یہ دنیا میں یہ کیا کر کے جائیں گے. ہم نے کہا ہم تو صرف آخرت بولتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں پہلے پارے سے لے کر اس پارے تک کہ میں نے کبھی آپ سے کہا ہو کہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا, کالج نہیں بھیجنا, یونیورسٹی نہیں بھیجنا, ہم تو پہلے پارے سے لے کر آج تک علم 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 کے پیچھے پڑے ہوئے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ مائیں بھی کیوں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیوں آپ مائیں یہ کہتی ہیں کہ میں میٹرک ہوں, میں ایف اے ہوں, کیوں ہیں آپ کے بچے کیوں آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. ابھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اتنے خوبصورت کورسز سٹارٹ کیے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب ہم بی اے اور ایم اے, ایف اے بی اے ایم اے ہم ایڈمٹ کر سکتے تھے, اب آپ کا ایف اے بی اے ایم اے بند ہو گیا, آپ پرائیویٹ نہیں کر سکتے آپ کو, کیونکہ آپ کے کالجز میں بی ایس آ گیا, اب آپ بی ایس پڑھتے ہیں, اب آپ ایف اے بی اے ایم اے, ایک وقت تھا وہ بی ایڈ ہوتا تھا اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہو جاتے تھے. اب وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اب وہ پرائیویٹ نہیں ہوتی, یہ سارا کچھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چلا گیا. اور اتنے اچھے کورسز آ گئے ہیں, ہفتے میں ایک دن بھی اگر آپ جائیں پورے ہفتے کا کورس گھر میں آ جاتا ہے, آن لائن موبائل پر ایک ٹچ میں. پھر بھی کلاسز بھی ہوتی ہیں آن لائن, جی بہت اچھا ان کا سسٹم, اب تو کلاسز بھی ٹیچرز بھی لے کر آ گئے ہیں وہ لوگ. تو پھر بھی اگر اس امت کی مائیں یہ کہتی ہیں ایک کلک کے اوپر اگر آپ کو دنیا کا بھی علم مل رہا ہے, اور اس امت کی مائیں کہتی ہیں کہ ہم نے میٹرک نہیں کیا, ہم نے ایف اے نہیں کیا, ہم نے بی اے نہیں کیا, تو پھر ہم سے زیادہ بدبختی کس کی ہونی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں دین کا علم بھی کتنا ضروری ہے. وہ کہتے تھے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, چورا چورا ہو جائیں گے, کس نے ہمیں دوبارہ سے اٹھانا ہے. یہی بات آج کل ہم ہڈیاں اور چورا چورا کی بات نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کیونکہ لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر وہ جو بالکل ایک چھوٹی سی ڈسک ہے اسی پر ہماری دوبارہ پیدائش ہونی ہے, اور وہ ڈسک نہ جلتی ہے نہ گلتی ہے, نہ مٹی کے اندر مٹی ہوتی ہے, وہ زندہ رہتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ جگہ پر رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہی ایک ریڑھ کی ہڈی کی ایک ڈسک ہے جس کے اوپر میں تمہیں
दोबारा उठाऊंगा, दोबारा जिंदा करूंगा। आजकल तो साइंस भी बता रही है जी, बिल्कुल छोटा सा सेल है, नजर भी नहीं आता, क्या पता वो उड़ उड़ा कर आपके घर में जो पौधे पड़े हैं उन्हीं में ही पड़ा हो, किस किस का सेल पड़ा हो जी, ना जलता है, ना मरता है, ना गलता है, उसको कुछ होता ही नहीं है। हमें क्या पता हमारे पौधों की मिट्टी कहाँ कहाँ से आ रही है, कहाँ कितने सेल उड़ उड़ के हमारी उन्हीं मट्टियों में पड़े हो, अल्लाह ताला वहीं से निकाल कर ले जाए। हम क्या जानते हैं हमारा सेल कहाँ पर चला जाए जब हम मरे। तो उस वक्त तो हड्डियां और चूरा चूरा था ना, अब उनको पता है कि हम साइंसी तौर पर इनको नहीं हरा सकते, तो अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आखिरत पढ़ा कर क्या कर लिया, दुनिया पढ़ाओ। तो अब आप दुनिया की भी तालीम देख ले, उसका हशर क्या है, जो वो कर रहे थे वो सेम वही हम सब करते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम कैसे, तुम हड्डियां, अगर हम हड्डियां और चूरा हो जाएंगे, क्या हम दोबारा असरे नो पैदा किए जाने उठाने वाले? कहिए अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कह रहे हैं, गौर से सुन ले। कहिए तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ, तुम्हें तो इंसान बनाया ना, पत्थर होते या लोहा हो जाते या कोई और मखलूक जो तुम्हारे सीनों में बड़ी मालूम होती है, फिर वो कहेंगे कौन हमें दोबारा लौटाएगा यानी पैदा करेगा? कहिए वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। हमें कहा जा रहा है कहने के लिए, साथ साथ कहते जाएं, वही जिसने तुम्हें पहली बार वो पैदा किया था। फिर वो आप ही की तरफ ताज्जुब से अपने सर हिलाएंगे और कहेंगे वो कब होगा? कह दीजिए मुझे उम्मीद है कि वो करीब ही हो, जिस दिन वो अल्लाह तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए तामीले इरशाद करोगे और तुम ख्याल करोगे कि बस थोड़ा अरसा ही ठहरे है कहाँ दुनिया में। अब गौर से सुन ले क्या कहा जा रहा है, और मेरे बंदों से कह दीजिए, बड़ी जबरदस्त आयत है, कि वो बात कहें जो अहसन हो, बेशक शैतान उनके दरमियान फसाद डालता है, बिलाशुबा शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हें बेहतर जानता है, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे, अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे, और हमने आपको इन पर जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। और आपका रब उन्हें खूब जानता है जो आसमानों और जमीन में है, और यकीनन हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी, हमने दाऊद को जबूर दी। कह दीजिए उन्हें पुकारो जिन्हें तुम इसके सिवा माबूद समझते हो, तो वो तुमसे किसी तकलीफ को हटाने का कोई इख्तियार नहीं रखते हैं, ना ही उसे बदलने का। जिन्हें ये मुशरिक लोग पुकारते हैं तो वो खुद अपने रब तक पहुंचने का वसीला ढूंढते हैं कि इनमें से कौन अल्लाह से करीब तर हो सकता है, और वो इसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, इसके अजाब से डरते हैं। बिलाशुबा आपके रब का अजाब डरने की चीज है, और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम योमे क़यामत से पहले हलाक ना कर दें या उसे शदीद अजाब ना दें। अल्लाह अकबर। और कब शदीद अजाब आता है, कब बस्तियां हलाक होती है? जब उनके अंदर बताने वाले और सिखाने वाले आ जाते हैं और वो बस्तियां मानती नहीं हैं। अल्लाह ताला जी कभी भी हमें ऐसे अजाबात में मुब्तला ना करना, और या अल्लाह जी हमें सीखने वालों में बना दें। और हमें निशानियां भेजने से सिर्फ उस चीज ने रोका है कि पहले लोगों ने इनको झुठलाया था। हमने समूद को एक ऊंटनी बतौर वाज़िया निशानी दी थी, फिर उन्होंने उस पर जुल्म किया। हम तो सिर्फ डराने के लिए निशानियां भेजते हैं। और याद करो जब हमने आपसे कहा कि बेशक आपके रब ने लोगों का अहाता कर रखा है, हमने आपको मेराज में जो मुशाहिदा कराया उसे लोगों के लिए बस एक आजमाइश ही बना दिया। शब्बे मेराज का वाकया लोगों के लिए आजमाइश बन गया। और इस दरख्त यानी जकूम को भी, जिस पर कुरान में लानत की गई, हम उन्हें डराते हैं तो ये डराना उनकी बड़ी सरकशी को ही ज्यादा कर देता है। तो ये अबू जहल और ये बाकी सब जो थे ये कहा करते थे, अच्छा ये मेराज पर गया था और इतनी सी देर के लिए गया था, और इस पर हंसते थे, ठट्ठा लगाते थे। और दूसरा सबसे ज्यादा जकूम के दरख्त को ये बहुत ज्यादा हंसी और ठट्ठे में गुजार देते थे। ये कहते थे अच्छा जहन्नुम के अंदर एक दरख्त होगा और वो आग के अंदर पला बढ़ेगा। और अबू जहल कहा करता था कि जकूम जो है, हमारी जुबान में तो जकूम मक्खन और मलाई और इस चीज को कहते हैं। अच्छा अगर ये दरख्त जकूम है तो हम खूब जहन्नुम में बैठकर मक्खन और इस टाइप की चीजें खाएंगे। ये इस तरह से ये मजाक उड़ाया करता था। फिर इसी तरह जहन्नुम के बारे में इन्होंने पूछा कि
कितने लोग होंगे, कितने फरिश्ते होंगे, कितने निगहबान होंगे? उनका 17 फरिश्ते। तो इसने कहा कि अच्छा अगर फरिश्ते हैं तो बस उनके लिए तो हमारा ये एक पहलवान ही काफी है। ये क्या कियास करके बैठे हुए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन तमाम बातों को हम लोगों के लिए मुश्तबा करते हैं और लोगों के लिए आजमाइश का सबब बना देते हैं। जैसे अबू जहल के लिए ये सब चीजें आजमाइश का सबब बन गई थी, वो उल्टी सीधी बातें बोलता था। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, इब्लीस के सिवा इन सब ने सजदा किया। वो बोला क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? कहने लगा भला देख तू उसे जिसे तूने मुझ पर इज्जत दी है। मैंने कहा है ना उसके सामने बन रहा था सारा पुतला, आपको बताया था ना कि सारा पुतला उसके सामने, इब्लीस के सामने बन रहा था। उसने देख लिया था कि ये तो मिट्टी से बना हुआ है। तो वो कहने लगा कि इसे जिसे तूने मुझ पर इज्जत दी है, अगर तू मुझे यौमे क़यामत तक ढील दे तो थोड़े से लोगों के सिवा मैं तो इसकी तमाम नस्ल की जड़ ही काट दूंगा। अल्लाह ने फरमाया जा फिर इनमें से जो तेरी इत्तबा करेगा बिलाशुबा तुम्हारी सजा जहन्नुम है, पूरी पूरी सजा। और इनमें से जिन पर भी तेरा बस चल सके, गौर से सुन ले आज की आयत, ये आयत बड़ी खौफनाक लगती है मुझे सूरत बनी इसराइल की। इनमें से जिन पर तेरा बस चल सके उन्हें अपनी आवाजों से बहका ले। आवाजों से आप देख लें, आप जरा सा आप मोबाइल उठाती हैं और आप वो देखने लगती हैं कि चलो मैं दोहरा कुरान सुन लूं, कुछ कोई आपकी पसंद का क्लिप आ जाता है, आधा घंटा पौना घंटा आप स्क्रॉल करते जाते वो आवाजें आपको भली लगने लग जाती हैं और उसी के अंदर आपका टाइम गुजर जाता है और आप कहती हैं हाय मैं तो दोहरा कुरान सुनने के लिए बैठी थी, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने 1 घंटा जो है वो कहाँ गुजार दिया। घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे वो आवाजें हमारे दिल को अच्छी लगने लग जाती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहूंगी हम सब भी कितना खयानत करते हैं। हम सब लोगों ने गाने सुनना बाकी सब बंद किया हुआ है, कहीं दूर से गाने की आवाज आ रही है, कितनी अच्छी लगती है दिल के ऊपर। बंदा वैसे जी वही ना, जो जिनको पुराने वक्तों का अच्छा लग रहा होता है वो एकदम से आपके दिल पर कितनी अच्छी लगने लग जाती है। अगर कोई कहता है नहीं तो वो झूठ बोल रहा है। क्यों? इसलिए कि अपनी आवाजों से उसने हमें बहकाया हुआ था और हम बहक गए। तो सबसे पहले खौफनाक देखें वो क्या करेगा, वो अपनी आवाजों से बहका लेगा, उस पर अपने सवार और प्यादे भी चढ़ा लेगा। शैतान सवारियों पर भी होता है और शैतान पैदल भी होता है। और फिर सबसे जो खौफनाक चीज है, माल और औलाद में से उनका शरीक बन जा और उन्हें झूठे वादे दे, और शैतान तो उन्हें बस फरेब ही का वादा देता है। तो आप देखें आपकी औलाद आप ही के पास बैठी होती है बिल्कुल आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर, और शैतान ने जो हाथ में सब कुछ दे दिया, जो स्क्रीन पर सब कुछ दे दिया, वो कांधे से कांधा लगाकर बैठी है। लेकिन आपकी औलाद उस वक्त वो चीज देख रही होती है जो आपके लिए भी बुरी और उसके लिए भी बुरी, तो उसने फौरन फौरन अपना हिस्सा निकाल लिया, आपकी औलाद में से भी निकाल लिया, और वो माल जो कि हम धड़ाधड़ जाया करते जा रहे हैं उसने उस माल में से भी अपना हिस्सा ले लिया। और अब तो आप देखें हम में से किसी को आदत ही नहीं रही कि हम बिस्मिल्लाह पढ़कर घर के अंदर दाखिल हो। बच्चों को भी 10-10 बार ये कहना पड़ता है बिस्मिल्लाह पढ़ो और एंटर हो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और एंटर हो। तो आप ये देखें बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े एक बड़ा बड़ा लश्कर हम लेकर अपने घरों के अंदर दाखिल होते हैं। 10 बार दिन में हमारे बच्चे अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, सारा घर हमने शैतानों से भरा हुआ है, अवतार में हमारे साथ बैठा हुआ है, खाने में हमारे साथ बैठा हुआ है, फिर हम कहते हैं बरकतें नहीं है, कहां से आएंगी? साथ साथ तो वो तो हमारे माल में से भी हिस्सा लेता जा रहा है, औलादों में से भी हिस्सा लेता जा रहा है, और वहां से देखता है जहां से हम उसे नहीं देखते, हम पीछे ये पड़ चुके हैं। तो कितना खौफनाक है शैतान के साथ लड़ना। लेकिन किन के लिए नहीं? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान वकफा बिरब्बिका वकीला। कितनी प्यारी आयत आ गई, दिल को ठंडक डाल दी अल्लाह ताला ने। मैंने अभी कहा उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, बेशक मेरे बंदे इबादी। इस बात को महसूस किया करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे बंदे, हर वक्त कहा करें मेरे अल्लाह जी, मेरे प्यारे अल्लाह जी। इतनी मोहब्बत और प्यार आएगा दिल में जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे, इबादी मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं और आपका रब ही कारसाज काफी है।
तुम्हारा रब वही तो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्ती चलाता है ताकि तुम इसके फजल में से तलाश करो, बेशक वो बड़ा रहम करने वाला है। और जब समंदर में तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो वो जिन्हें तुम इस अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो गुम हो जाते हैं। कश्ती डोलने लगे तो बुलाए पीरों फकीरों को। आजकल बड़ा हमने लंबा चौड़ा वाकया सुन रहे हैं कि पुराने जमाने में कोई बारात डूब गई थी और एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हाथ मारा और समंदर के बीच में वो पुरानी सी बारात निकाल कर जो थी वो बाहर ला कर रख दी। हम तो आजकल ऐसे मौजों के बड़ी तलाश में रहते हैं ना, फिर उन्हीं के पीछे चलने लग जाते। देखें आप सबकी गर्दनें हिल रही है, वाकया सबको पता है। आप देखें कि हम इस वाकये को ला लाकर हम कहां कहां हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो फिर क्या कहा जा रहा है, और जब समंदर में तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे वो जिन्हें तुम इस खुदा के सिवा पुकारते हो वो गुम हो जाते हैं। फिर जब अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ निजात देता है तो तुम मुंह मोड़ लेते हो। इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। या अल्लाह जी हमें नाशुक्रे लोगों में शामिल ना करना। क्या फिर तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें खुशकी की तरफ जमीन में धंसा दे या तुम पर संग्रेजों वाली सख्त आंधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए कोई कारसाज ना पाओ। या अल्लाह जी ऐसे अजाबात से बचा ले। और क्या फिर तुम बेखौफ हो गए कि वो तुम्हें दोबारा इस समंदर में लौटा दे और फिर तुम पर तोड़ देने वाली तूफानी हवा भेजे, वो तुम्हारे कुफर के सबब तुम्हें गर्क कर दे, फिर तुम अपने लिए हमारे खिलाफ इस पर कोई हमारा पीछा करने वाला भी ना पाओ। और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी आदम को इज्जत दी। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी आयत है। वलकद करमना बनी आदम, हमने इज्जत दी। और इज्जत कौन दे रहा है? अल्लाह सुभाना व ताला। कितनी बड़ी बात है। आज को अंडरलाइन करें और दिन रात खुश हुआ करें, इबादी को अंडरलाइन किया करें और बनी आदम की इज्जत को अंडरलाइन करें, दिन रात खुश हुआ करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत दी और उन्हें बहरो बर में सवारियां दी, उन्हें पाकीज़ा चीजों में से रिस्क दिया और उन्हें अपनी कसीर मखलूकात पर जिन्हें हमने पैदा किया फजीलत दी। जिस दिन हम तमाम इंसानों को उनके अमाम के साथ बुलाएंगे, जिसकी पैरवी करते होंगे, अमाम वो होता है जो आगे खड़ा होता है, जिसकी पैरवी करते होंगे उनके साथ जाएंगे। फिर जिसे उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया तो वो अपना अमाल नामा पढ़ेंगे, उन पर गुठली के धागे के बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। और जो इस दुनिया में अंधा रहा, गौर से सुन ले, यहाँ अंधा किसको कहा जा रहा है? जो कुरान नहीं पढ़ता वो आखिरत में भी अंधा और राह से बहुत ज्यादा भटका हुआ रहेगा। और बिलाशुबा करीब था कि हमने आपकी तरफ जो वही की है, काफिर उसको इससे फिसला देते हैं ताकि आप हम पर और इसके अलावा कुछ और घड़ लें, तब वो जरूर आपको अपना दिली दोस्त बना लेते हैं। अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो बिलाशुबा करीब था कि आप उनकी तरफ थोड़ा सा झुक जाते। अगर ऐसा होता तो हम आपको जिंदगी में भी और मौत की बाद भी 2 गुना अजाब चखाते, फिर आप अपने लिए हमारे खिलाफ कोई मददगार ना पाते। बिलाशुबा करीब था कि वह आपको इस जमीने मक्का से उखाड़ दें ताकि आपको यहां से निकाल दें, तब आपके पीछे वो थोड़ा ही ठहर पाते। इन रसूलों के तरीके की मानिद जिन्हें हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से भेजा, और आप हमारे तरीके और कानून में तब्दीली नहीं पाएंगे। और अब ये आयत एक और जबरदस्त आ गई कि और सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करें और नमाज फजर भी, बेशक फजर की नमाज फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। सुभान अल्लाह। आजकल फजर पढ़ा करे तो बड़े शौक और ज़ौक से जब फरिश्ते उस वक्त हमारी नमाज और सारी की सारी बातें लेकर जाते हैं। और रात के कुछ हिस्से में भी आप इस कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ें, यह आपके लिए जायद है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मकामे महमूद पर खड़ा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और आगे क्या प्यारी आयत आ गई है, वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम वाखरिजनी मुखरज सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बहुत प्यारी आयत जिसमें क्या कहा गया, और कहिए, हम सबको कहा जा रहा है, क्या कहिए? ऐ मेरे रब, दाखिल कर मुझे सच्चा दाखिल करना, निकाल मुझे सच्चा निकालना, और मुझे अपने पास से मदद देने वाला गलबा अता फरमा। आमीन। तो जब मदरसे आया करें तो अंदर एंटर होते हुए ये दुआ जरूर पढ़ लिया करें। बल्कि वो हमने इस दुआ को लिखवाया भी हुआ है, हमारी स्टैंडी पर भी है, तो बल्कि आज ही
ہم یہ اچھا کام کیوں نہ کرے کہ وہ سٹینڈی سامنے جو صبح آئے وہ پنک والی سٹینڈی ذرا سامنے رکھ دیا کرے. جی بالکل, تو سامنے رکھ دیا کرے تو انٹر ہوتے ہی یہ دعا سب پڑھ لیا کرے اور آ کر پھر بیٹھ جایا کرے اور اپنے لیے مدد مانگا کرے. دیکھیں میں نے آج نیند کی بات کی, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا دور کرنا چاہ رہے ہو, یہ ہے وہ دعا جو تمہاری مدد کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کیسے جواب دیتے ہیں ہمیں, ساتھ ساتھ ہمیں جواب ملتا جا رہا ہے. اور کہیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل تو مٹنے والا ہی ہے. اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور وہ ظالموں کو خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے, اپنا پہلو دور کر لیتا ہے, اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے, چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے, تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے. غور سے سن لیں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو منٹوں میں ہمارے اندر سے قرآن پاک کا ایک ایک ورڈ نکل جائے, کچھ بھی یاد نہ رہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ جی کبھی بھی ایسا وقت ہمارے اوپر نہ آئے, یا اللہ جی ہمارے اندر ایسا نسیان کبھی بھی نہ آئے کہ ہم قرآن کو بھول جائیں. یا اللہ جی اپنے بہترین بندوں میں شامل رکھنا, اور یا اللہ جی اہل القرآن میں شامل رکھنا. سوائے آپ کی رب کی رحمت کے بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے. کہہ دیجیے البتہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے. سبحان اللہ, کتنا بڑا کلام. اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں. بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی, پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا مگر کفر سے انکار نہیں کیا. وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے, یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو, پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے, یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دے جیسے تو کہا کرتا ہے, یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آ, یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو, یا تو آسمان میں چڑھ جا, یا ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں. کہیے میرا رب پاک ہے, میں تو ایک بشر اور رسول ہوں. اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر یعنی رسول بھیجا ہے. کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے, بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے, انہیں خوب دیکھنے والا ہے. اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہ ہی ہدایت یافتہ ہے, جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے. اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب بھی وہ جہنم بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ اکثر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک جس اللہ نے آسمان اور زمین تخلیق کیے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر تخلیق کر دے, اور اس اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں. پھر ان ظالموں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہ کیا. کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہونے کے ڈر سے ضرور روک لیتے. سبحان اللہ, اللہ کی رحمتوں کے خزانے اتنے بڑے بڑے خزانے ہوتے. انسان کا دل کتنا تھوڑ دلا انسان ہے, اور انسان نہایت ہی بخیل ہے. اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی. چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں, جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تجھے
सहर ज़दा समझता हूँ। इस पर मूसा ने कहा, यकीनन तू जान चुका है कि ये चीजें आसमानों और जमीन के रब ने ही वाज़ेह दलाइल बनाकर गौर करने के लिए नाजिल की हैं, और ए फिरौन, मैं तो तुझे हलाक किया हुआ समझता हूँ। फिर इस फिरौन ने इरादा किया कि उन्हें इस जमीन से उखाड़ दे, तो हमने उसे और उसके सब साथियों को गर्क कर दिया। और इसके बाद हमने बनी इसराइल से कहा कि इस जमीन में रहो, फिर जब आखिरत का वादा आएगा तो हम तुम सबको समेट कर ले आएंगे। तो इस सरजमीन से मुराद यहाँ शाम और मिस्र है। बनी इसराइल 40 साल मैदान तीह में गुजार कर फलस्तीन में दाखिल हुए, और यही वाकया यहाँ पर बयान किया जा रहा है। और फिर आप देखें, और ये जो आपको शाम कहा जाता है ना, तो शाम का इलाका एक होता था उस वक्त फलस्तीन। शाम इतना बड़ा था उस वक्त, ये तो अब टुकड़े टुकड़े हुआ है। और ये हुकूमत यहाँ ईरान तक, ये बिल्कुल करीब, ये सारी जगह जो होती थी ये एक ही होती थी, और ये सारी जगह शाम ही कहलाती थी। फिर ये बाद में टुकड़े टुकड़े होकर मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बन गए हैं। हमने इस कुरान को हकी के साथ नाजिल किया, ये हकी के साथ नाजिल हुआ। हमने आपको सिर्फ बशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है। और कुरान को हमने जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि आप इसे लोगों को ठहर ठहर कर सुनाएं। आज ही मैंने बात की है, तो साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला भी दिल को तसल्ली दे रहे, कह रहे भागने की जरूरत नहीं है, कुरान ही हमने जुदा जुदा करके जो है वो नाजिल कर दिया, कोई जरूरत नहीं भागने की, ठहर ठहर कर लोगों को सुनाओ। कितनी बड़ी बात है, बस इतना सुनाओ। देखिए, हम कहते हैं अल्लाह ताला कैसे बातें करते हैं, ऐसे बातें करते हैं, ऐसे देते हैं जवाब, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला के जवाबात कौन समझता है? जो जो अक्ल रखता है, जो तफक्कुर करता है, तदब्बुर करता है। तो आप इस कुरान पर तफक्कुर और तदब्बुर करें, कैसे आपको जवाबात जो हैं वो साथ साथ मिलते चले जा रहे हैं। बड़ा अल्लाह ताला का इस पर शुक्रिया अदा करें। और फिर क्या कहा जा रहा है कि और कुरान को हमने जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि आप इसे लोगों को ठहर ठहर कर सुनाएं। हमने इसे बतदरीज ही नाजिल किया है। फिर अल्लाह ताला और भी जोर दे रहे हैं, बतदरीज नाजिल किया, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया है। कह दीजिए इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, बिलाशुबा जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया था, जब इन पर तिलावत की जाती है तो अपनी थोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। वो कहते हैं, पाक है हमारा रब, बेशक हमारे रब का वादा जरूर पूरा होना है। और वो रोते हुए अपनी थोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं, और ये कुरान उनके खुशू को ज्यादा कर देता है। सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कह दीजिए अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, तुम जिस नाम से भी पुकारो उसी के लिए है अच्छे अच्छे नाम। और अपनी नमाज ना बुलंद आवाज से पढ़े, ना बिल्कुल ही आवाज गले में बंद कर ले, बल्कि पस्त आवाज से, बल्कि इसके बैन बैन रास्ता इख्तियार करे, दरमियान दरमियान में पढ़े। कह दीजिए, सब हमें क्या कहा जा रहा है, कह दीजिए। तो सारे मिलकर कहें, आए हम सब मिलकर आखिरी आयत पढ़ लें। वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदम वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल फकब्बिरहू तकबीरा। कितना खूबसूरत पढ़ा दिया। क्या कह दीजिए, सारी हमद अल्लाह ही के लिए है, जिसने अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई। साथ साथ कहते जाए, वाकई मेरे अल्लाह जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही बादशाही में उसके लिए कोई शरीक है, कोई नहीं है मेरे अल्लाह जी। और ना ही उसे नातवानी और कमजोरी की वजह से कोई हमायती दरकार है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह जी आप पाक हैं हर चीज से, और आप यकता और अकेले हैं। और आप इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करें, कमाल दर्जे की बड़ाई। चले बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, आपने जो हमें इस कलाम पाक पढ़ के आपकी बड़ाई करने की जो तौफीक दे दी, जो हमारी जुबानें चल पड़ी, जो हमारे गलों ने हमारा साथ दिया, या अल्लाह जी इस पर भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। या अल्लाह जी, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर ध्यान भी दिलाया जाए तो आप उनकी बड़ाई बयान करना ही पसंद नहीं करते। या अल्लाह जी, ऐसे लोगों में कभी भी हमें शामिल ना फरमाना। या अल्लाह जी, अपने हर हुक्म पर हमें सर तस्लीम करने वाला बना देना। या अल्लाह जी, आपके हर हुक्म पर हम आगे बढ़ बढ़कर उस हुक्म को लेने वाले बन जाएं। और या अल्लाह जी, कुरान पाक का अंदाज अब बहुत सख्त होता जा रहा है। या अल्लाह जी, कुरान पाक की आयत और जहन्नुम की आयत बहुत सख्त होती जा रही हैं। या अल्लाह जी, ये जहन्नुम बहुत सख्त है। या अल्लाह जी, बहुत अजाब की जगह है। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हर एक को इससे बचा लें। और या अल्लाह जी, हमें तौफीक ही ना दें कि हम जहन्नुम में जाने वाले अमाल करने के काबिल हो जाएं। या अल्लाह जी, कभी भी हमें ये तौफीक ना देना। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, या अल्लाह जी, हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को और हमारे दिल को भी या अल्लाह जी अपनी अतात पर मामूर कर लें। और या अल्लाह जी, हमारे बच्चों के लिए भी हम सब यही मांगते हैं। या अल्लाह जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जितनी दुआएं मांग कर गए, जो भलाई पर मबनी थी, जो कुछ उन्होंने मांगा, या अल्लाह जी वो सब हमारे लिए भी कबूल फरमा लें। और ए मेरे प्यारे अल्लाह जी, ए मेरे प्यारे अल्लाह जी, ए मेरे प्यारे अल्लाह जी, हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता कर दें और हमें अपने कुर्ब वाले बंदों में, अपने अहलुल कुरान में शामिल फरमा लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।